dear learners. How are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the new session of Science Class with chapter number 2, that is Growth in Plants. So, students, today we are going to learn about a very important life process in the living organism known as reproduction. And today we will learn about reproduction in plants. All right, so let's start the chapter and learn about the topic. Plants are everywhere. They are very important for the survival of living being because they provide food, oxygen, and help in maintaining the temperature of the earth. What they say कि plants almost हर जगह, they are everywhere. Alright. And plants किसी भी living being के survival के लिए बहुत important है because plant क्या provide करते हैं? Food, oxygen and also हमारे earth के temperature को maintain रखने में they are very useful and helpful. So there is a great variety of plants on the earth. अर्थ पे प्लांट्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी है जो प्रेजेंट है और जो बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं दे आर ट्रीज, shrubs, herbs, creepers एंड climbers. So first of all we have trees. Trees क्या है? Trees आपके tall and strong plants होते हैं. इनकी स्टेम काफी हार्ड एंड थिक होती है जिससे हम ट्रंक बोलते हैं. Example, mango, guava, neem, etc. All these are trees. Second, we have shrubs. Shrubs आपके smaller than trees होते हैं. इनकी stems भी woody होती है. Example, rose, henna, lemon, etc. All these are shrubs. Next, we have herbs. Herbs are very small plants. Herbs काफी ज़्यादा छोटे plants होते हैं and इनकी stem काफी soft and green colored होती है. They grow just above the ground. Herbs ground से just थोड़ा ही above grow करते हैं. That means they are very close to the ground. Example, coriander, bay leaves, mint, etc. All these are herbs. Next we have creepers. Creepers आपके weak plants होते हैं and ये कहाँ along the ground grow करते हैं. Example, pumpkin, watermelon, muskmelon, etc. All are creepers. Next we have climbers. Climbers भी क्या है? They are also weak plants only. Alright, but they can grow upward with some support. ये किसी support के थ्रू ऊपर की तरफ grow कर सकते हैं. Like wall, stick या कोई भी other plant और tree के थ्रू. इसके support के थ्रू they grow upwards. Example, grapevine, peas, gourd, etc. are climbers. Now, about 1/3 of the earth is covered with plants and trees. हमारे earth का 1/3 part जो है plants and trees से covered है. Next we have reproduction in plants. So next topic क्या है? Plants में reproduction process के बारे में. So first of all, what is reproduction? Reproduction is a process through which the offspring of the same species come into existence. एक ऐसा process जिससे same species के जो offsprings होते हैं वो existence में आते हैं उसे हम reproduction कहते हैं. And plants जो है plants अपने seeds, stem, leaves, roots और spores के through reproduce करते हैं. एंड इन दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एक न्यू प्लांट सीड के थ्रू ग्रो करता है. ऑलराइट, तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड. सी स्टूडेंट्स, ज्यादातर प्लांट्स जो है सभी सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं. आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर है वो ग्रीन ग्राम, जैसे हम मूंग दाल कहते हैं, उसे किस तरीके से स्प्राउटेड बनाती है. कैसे यहाँ पे स्प्राउट्स है ग्रीन ग्राम के. एंड ये भी क्या है? ये भी एक तरीके की सीड्स है. योर मदर सोक, आपकी मदर ग्रीन ग्राम को सोक करते हैं ओवरनाइट एंड देन उस वाटर को जिसपे उसे सोक किया गया था उसे पोर कर दिया जाता है एंड उसके बाद उस दाल को हम रैप रखते हैं एंड कवर रखते हैं फॉर 1 or 2 nights तक. देन आफ्टर 2 डे, 2 दिन के बाद आप क्या देखोगे कि उस ग्रीन ग्राम में कुछ थ्रेड जैसे प्रोजेक्शंस आपको अपीयर हो रहे हैं एंड इन्हीं थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन से न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रो. Before understanding this process completely, we will study about the parts of a seed. अब इस प्रोसेस को पूरी तरीके से समझने से पहले हम एक सीड के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. So what are the parts of seed? Observe one sprouted seed carefully. आपको क्या करना है? एक sprouted seed लेनी है, उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है. आप उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं. सबसे पहले एक आउटर कवरिंग होती है, फिर एक मिडिल पार्ट होता है एंड एक इनर पार्ट होता है. तो इस तरीके से सीड बेसिकली इसके अंदर सीड के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. दैट इज सीड कोट,
seed leaf or cotyledon also, and third is embryo. First of all, seed coat. Seed coat क्या है? It is the outer covering of the seed. Seed की outer covering को we call seed coat. And seed coat का काम है जो बाकी अंदर के दो parts है seed के, that is seed leaf and embryo, उन्हें क्या provide करना? Protection provide कर. So what I told you that seed coat क्या करता है? Seed coat जो अंदर के दो part और है seed के, that is seed leaf and embryo, उन्हें protection provide करता है. Alright? फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से क्या होता है, एयर के अंदर, सॉरी सीड के अंदर एयर एंड वाटर एंटर कर पाते हैं. राइट, नाउ नेक्स्ट इज सीड लीफ. सीड लीफ क्या है? सीड का जो मिडिल वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सीड लीफ और कॉटिलेडन ऑल्सो. ये पार्ट सीड का फ्लैशी होता है एंड जो बेबी प्लांट है इनसाइड द सीड उसे फूड प्रोवाइड करता है टू ग्रो. राइट, सम प्लांट्स, सी कुछ प्लांट्स के अंदर केवल वन कॉटिलेडन प्रेजेंट है, यानी कि केवल एक सीड लीफ प्रेजेंट होती है, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट्स. बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर टू कॉटिलेडन्स आर प्रेजेंट एंड दे आर कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स. एग्जांपल मेज, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, ये मोनोकॉट प्लांट्स हैं. पीस, बीज, ग्राम, ये सभी डाइकॉट प्लांट्स हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रियो. What is embryo? Embryo आपका third part है seed का, and it is a baby plant from which a new plant comes to existence and grow. Alright, embryo वही baby plant है seed के अंदर जिसके through एक new plant exist करता है and उसको grow किया जा सकता है. And now learn about the process through which a new plant grow, that is known as germination. And अब हम डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस के बारे में जिसमें एक सीड के थ्रू एक न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है. That process is called germination of seed. Alright? So, when the baby plant is inside the seed, we call it as an embryo. Seed के अंदर baby plant present होता है, हम उसे embryo कहते हैं. And जब एक embryo seed से बाहर निकलकर above the soil grow करता है, तब उसे कहा जाता है seedling. Okay? So, in simple words, growing up an embryo, एक embryo की growth होना into a seedling, उसे कहा जाता है germination. राइट, टू जर्मिनेट. अब जर्मिनेट होने के लिए एक सीड को कुछ फेवरेबल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. व्हाट आर दोस फेवरेबल कंडीशन? दैट इज एयर, वाटर एंड वार्मथ. तो बेसिकली जब एक सीड को ये सभी थ्री कंडीशंस यानी कि एयर, वाटर, वार्मथ तीनों ही चीजें एक राइट अमाउंट में मिलती हैं, तो वहां पे सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट करता है. राइट, एंड दस इस तरीके से द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ सीडलिंग, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक एम्ब्रियो सीडलिंग में ग्रो करने लगता है आफ्टर गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ. ऑलराइट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड. ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. अब बात करते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस की. सो फर्स्टली सबसे पहले क्या करना है, हमें सीड को सॉइल के अंदर सो करना है एंड उसे वाटर प्रोवाइड करना है इन द राइट अमाउंट. And when the seed gets the right amount of water, air and warmth, and जब seed को एक correct, एक accurate amount का water, air and warmth मिलता है, वहाँ पे seed water absorb करती है अपने किसके through? Seed में tiny hole present है, उसके through seed starts to absorb water. After that, the seed जो coat था, hard outer covering, वो soft हो जाता है and loose हो जाता है. And then जो अंदर seed leaves या cotyledons है, वो भी soft होने लगती है. सीड का साइज स्वेल हो जाता है एंड सीड कोट अपने आप स्प्लिट होकर उसके अंदर जो रूट है एम्ब्रियो से वो स्टार्ट्स टू डेवलप होना स्टार्ट करती है एंड देन नीचे की तरफ ग्रो करती है बिकॉज रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स ओनली. ऑलराइट, देन एम्ब्रियो स्टिल यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स. अब जो एम्ब्रियो है वो स्टिल कॉटिलेडन्स के अंदर जो फूड स्टोर है उसे यूज करेगा एंड सून यानी कि जल्द ही फिर शूट पार्ट भी डेवलप होगा एंड सॉइल से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स ग्रो करेगा. नाउ द एम्ब्रियो, अब इस एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है? वी कॉल इट सीडलिंग. द सीडलिंग डेवलप्स लीव्स, सीडलिंग में लीव्स डेवलप होती है एंड देन इट स्टार्ट्स टू मेक इट्स ओन फूड. फिर वो अपना खाना खुद बनाने लगती है. बाय दिस टाइम एंड देन अभी तक जो इतने समय में क्या होता है, धीरे धीरे जो कॉटिलेडन्स है वो ड्राई हो जाती है and then they fall off. And now, and इसके बाद सीडलिंग जो है इंडिपेंडेंट हो जाती है
एंड यहाँ से जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है इट गेट्स कंप्लीट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज डिस्पर्जल ऑफ सीड. तो डिस्पर्जल मीन्स टू स्कैटर अवे. डिस्पर्जल का मतलब होता है स्कैटर अवे, दूर दूर तक फैल जाना. And the scattering away of seed from the mother plant is known as dispersal of seed, which is an important phenomenon. And seeds का अपने mother plant से scatter होना उसे कहा जाता है dispersal of seed, जो कि बहुत important phenomena है. So अगर एक seed अपने mother plant के near by ही scatter होती है तो वहां पे क्या होता है? See students, if all the seed disperse near the mother plant, अगर सारी seeds mother plant के आसपास ही disperse हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे, सेम प्लेस पे ही जर्मिनेट करेंगी एंड वहां पे वो प्लेस ओवर क्राउडेड हो जाएगा. देन वो सारी सीड्स क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा इन सभी चीज़ों के लिए कॉम्पीट करेंगी. एंड क्योंकि उन्हें सभी चीज़ क्या एक राइट और नीडेड अमाउंट में नहीं मिलेगा, सो एज अ रिजल्ट कुछ सीड्स क्या होंगी, दे वुड डाई आउट एंड कुछ सीड्स में क्या दिखेगी, काफ़ी पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगी. तो यही एक रीज़न है कि सीड डिस्पर्जन होना काफ़ी ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज वी नो प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे कि हमें पता है प्लांट्स तो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए प्लांट्स में कुछ ऐसे वेज डेवलप होते हैं सीड डिस्पर्जल के कि सो दैट सीड को कुछ अदर डिस्टेंट प्लेसेस तक डिस्पर्स किया जा सके फ्रॉम दी मदर प्लांट. एंड सीड्स कुड बी डिस्पर्स बाय विंड, वाटर, लिविंग बींग्स और एक्सप्लोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बाय विंड. तो कुछ सीड्स हैं जो विंड के थ्रू भी डिस्पर्स होती हैं, बट वो सीड्स काफ़ी लाइट होती है या उनमें विंग्स और हेयर होते हैं जो उन्हें अनेबल करते हैं टू मूव विद द विंड. एग्जाम्पल कॉटन, डेंडेलियन, साइकमोर, मैदर, हिप्टेज एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स विंड के थ्रू डिस्पर्स होती है. सेकेंडली बाय वाटर. सी अब कुछ ऐसी सीड्स है जो वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स होती है एंड वो सीड्स काफ़ी फाइब्रस, स्पॉन्जी या उनमें वाटर प्रूफ कपड़े होती है. वो प्लांट्स जो किसी भी नियर वाटर बॉडी ग्रो करते हैं वो अपनी सीड्स को वाटर के थ्रू ही डिस्पर्स करते हैं, लाइक कोकोनट, लोटस एक्सेट्रा. ऑलराइट, देन कुछ सीड्स है जो लिविंग बींग्स के थ्रू भी डिस्पर्स होती हैं. एनिमल, बर्ड्स एंड ह्यूमंस ये भी क्या करते हैं, सीड डिस्पर्जल प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं. सी सम सीड्स, कुछ सीड्स में स्पाइन, हुक्स और ब्रिसल्स होते हैं एंड इसी वजह से ये सीड्स क्या किसी एनिमल के फर पे या तो स्टिक हो जाती हैं या ह्यूमन क्लोज पे स्टिक हो जाती है एंड देन डिस्टेंट प्लेसेस तक इजीली डिस्पर्स हो सकती है. फॉर एग्जांपल बड रॉक एंड कॉकलपर. राइट, एंड बिसाइड दिस, इसके साथ साथ जो बर्ड्स हैं एंड एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं एंड जो अनडाइजेस्टेड सीड्स है वो उनके वेस्ट के थ्रू हो जाती है. Similarly, humans also eat fruits and then they throw away the seeds. All right. And in this way, seeds get dispersed by the human beings also. Next, we have by explosion. तो some seeds कुछ ऐसी seeds हैं जो ड्राई होने पर बर्स्टली ओपन होती है और इस तरीके से seeds डिस्पर्स हो जाती है एक्सप्लोजन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल पीज, बीन्स, बाल्सम, लेडी फिंगर एक्सेट्रा. राइट, नेक्स्ट वी हैव अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. अब कुछ और भी तरीके हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के. तो अदर देन सीड्स के अलावा प्लांट्स अपने रूट, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं एंड इस टाइप की रिप्रोडक्शन को वी कॉल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द रूट्स. सी नाउ देयर आर सम प्लांट्स जो कि अपने रूट्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा. देन फ्रॉम स्टेम, तो रोज, मनी प्लांट, शुगर केन, पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा ये प्लांट्स अपनी स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. देन फ्रॉम लीव्स, तो कुछ प्लांट्स है लाइक ब्रायोफाइलम जो अपने लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. ऑलराइट, इट हैज प्लांट दैट गेट्स अलोंग द एज ऑफ इट्स लीफ. एक्चुअल में ये एक ऐसा प्लांट है जिनकी लीव्स के एजेस पर क्या छोटे छोटे से बर्ड्स ग्रो करते हैं एंड देन वो बर्ड्स ग्रो करने के बाद कुछ टाइम बाद नीचे फॉल कर जाते हैं एंड देन जहाँ ये फॉल करते हैं वहीं से न्यू प्लांट्स विल ग्रो अप. देन फ्रॉम स्पोर्स आल्सो, सो मोस्टली फर्न्स एंड फंगाई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं.
ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट फैक्टर्स ऑफ प्लांट्स। अब हम बात करते हैं कुछ डेवलपमेंट फैक्टर्स की ऑफ प्लांट्स। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो सारे फैक्टर्स जो प्लांट के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, दे आर सॉइल, क्लाइमेट एंड सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉइल। सॉइल क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी भी टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस एंड जूट, ये केवल लोमी और क्ले सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट्स, वेयर एज कॉटन केवल ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाता है। देन वीट एंड बाजरा, ये सैंडी सॉइल में ग्रो करने वाले क्रॉप्स हैं। देन टी आपका मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करता है, वेयर एज कोकोनट आपका सॉल्टी और कोस्टल रीजन की जो सॉइल है वहां ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से प्लांट्स जो हैं, सभी प्लांट्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो कर पाते हैं, एंड सॉइल अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। सेकंड वी हैव क्लाइमेट। The plants grow in different climatic conditions. अब plants different climatic conditions के अकॉर्डिंग भी ग्रो करते हैं। So कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो केवल स्पेसिफिक क्लाइमेट में ही ग्रो कर पाएंगे, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करता है। देन सम प्लांट्स लाइक रबर, रबर को काफी हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है ग्रो करने के लिए। कॉनिफेरस ट्रीज आपके हिली और माउंटेनियस रीजन्स में ग्रो करते हैं, जहाँ पे स्नोफॉल एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना होता है। देन सम प्लांट्स ग्रो इन प्लेन्स ऑल्सो। कोकोनट ये एक ऐसा ट्री है जो डैम्प एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में ग्रो करता है। सो सर्टेन प्लांट्स की स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट को रिक्वायर करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। लास्ट वी हैव सीजन। सो इन इंडिया, इंडिया में क्रॉप्स के टू सीजन्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रॉप्स व्हिच ग्रो इन विंटर, वो सारे क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम, दे आर राबी क्रॉप्स। बट वो क्रॉप्स जो कि समर में ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल राइस, ज्वार, बाजरा, दीज आर खारिफ क्रॉप्स। ऑलराइट, so the chapter is completed over here. These were the different methods of reproduction in plants and also the major important concept of reproducing the plants, that is by seeds. Alright, so let's meet in the next session with a new topic of science. Till then, keep learning and keep going well. Thanks, everyone.